so praise God, praise God. I feel his presence. I don't know about you, but I feel his presence. And there are people watching me who need this word. There are people watching me who are waiting for the word of God. Amen, amen. You're excited, and so am I, because I am so blessed. I'm so blessed that God is using me this moment, and God is going to use you too. Hallelujah, amen. So once again, I thank the admins of Isaac Music World for giving me this privilege, this opportunity to serve the Lord on this platform. Every time a place has been given to us like this, it is a privilege, and I thank God for this. Hallelujah, amen. So today I want to talk to you about what the Lord has put on my heart. Okay, why should we forgive? हाँ, thank you Lord Jesus. मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी में भी बात करने के लिए. I will try my best. Thank you Lord Jesus. So why should we forgive? हमको क्षमा क्यों देना है? Hallelujah. So first of all, let me say this. Many people are struggling with the issue of forgiveness. Many people. They are struggling. Some say it's very hard to forgive. Some have been hurt so much. Okay? बहुत लोग ऐसे अपने हृदय में बहुत ही कड़वाहट लेके बैठे हैं, बहुत ही दर्द लेके बैठे हैं अंदर की, क्योंकि किसी ने उनको दर्द दिया है, दुख दिया है, ऐसा कुछ अन्याय किया है उनके ऊपर. They have done something wrong. People have done wrong to them, and they are hurt inside. उनके अंदर घाव है. They have got wounds in their heart, which is very difficult for them to forget about it. Hallelujah. So it is there, and if it is you who is watching this program and you need this word of God, so then this word is for you. And I tell you, please share this video, because many people are in need of this word. बहुत लोगों को ये वचन बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों को ये वीडियो मिल सके, ये परमेश्वर का वचन मिल सके. आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करेगा और आपको छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. Thank you Lord Jesus. So many people are struggling with this issue of forgiveness, and that is the reason why people are having problems even physically in their body. उनके शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, शरीर में दर्द होता है, जॉइंट पेन्स होता है, अर्थराइटिस होता है, बहुत कुछ ऐसा साइकोसोमैटिक डिजीजेस है जो कड़वाहट के द्वारा अंदर हमारे आते हैं, कड़वाहट के द्वारा हमारे अंदर रहते हैं. So because of the bitterness, many people are suffering with all kinds of sicknesses. Also mentally people are suffering because they cannot forgive people. Their mind is so tormented. हमारे मन को इतना दर्द होता है, हमारे मन को इतना ही घाव, चोट पहुंचता है कि हमको कंसंट्रेट करने को नहीं होता, फोकस करने को नहीं होता. बार बार जो शब्द उन लोगों ने बोला है, जो कार्य उन लोगों ने किया है विरुद्ध हमारे ऊपर, वो बार बार हमारे मन में आता है. Every time this thing is coming, and so it is a disturbance in people's life, and as a result of unforgiveness, लोगों को क्षमा करने को नहीं होता, इसलिए हमारा प्रार्थना का जीवन में ऑब्स्टिकल आता है, हमारा प्रार्थना का जीवन आगे नहीं बढ़ सकता. We say that we are praying, but we actually we cannot pray. Hallelujah. I believe that this word is being received by many people. I can feel the hunger for this word. Hallelujah. I can feel the need for this word. Come on now. Hallelujah. Just get ready. Just get tuned into what God is speaking to you today. Hallelujah. Praise God. So your prayer life is hindered. There are so many things that happen because people cannot forgive. हम क्षमा नहीं देते, इसलिए हमारे जीवन में कितने सारे मुश्किलें आ जाती है. हमारा प्रार्थना में भी रुकावट आती है, हमारा प्रार्थना का भी जवाब परमेश्वर नहीं दे सकता जब हमारे अंदर ये कड़वाहट है. हमारा हृदय में जब परमेश्वर ये वचन देता है तो हमको ग्रहण करना है. हालेलुया. You have to receive this word, that what God is going to speak to you today. Amen. Thank you Lord. So when you have bitterness in your heart, when you have unforgiveness in your heart, you can't even pray, you can't even enjoy the presence of God. But Jesus said, the thief comes to kill, to steal and to destroy. Hallelujah. शैतान आता है चोरी करने के लिए, घात और हत्या करने के लिए. वो आता है चोरी करने के लिए. क्या चोरी करने के लिए आता है? आपका सुख और चैन चोरी करने के लिए आता है. He is coming to rob you of your joy, of your peace. Hallelujah. आपकी जो सेहत है, your health, he is coming to rob it. He is coming to rob your blessing. Can't you see that? Can't you see that? And then, but Jesus said, but Jesus said, hallelujah. But Jesus said,
that I have come that you may have life and life in fullness. मैं आया हूँ आपको जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए. I'm come to give you life in fullness. Amen. Hallelujah. So many times unforgiveness is a block in our relationship with God. It becomes a block in our relationship with other people. दूसरे लोगों के साथ जब हम संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो कड़वाहट है, इसके वजह से लोगों के बीच में इतना कंफ्यूजन आ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाता है. गुस्से के द्वारा हम अंदर कड़वाहट है, इसलिए हम गुस्सा आता है हमारे अंदर और हम गुस्से से लोगों के साथ हम बात करते हैं और हमारे गुस्से के द्वारा हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आता है, आर्गुमेंट्स आता है, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं, शादीशुदा जीवन भी टूट जाता है. एंड सो मेनी ब्रोकन मैरिजेस बिकॉज पीपल डू नॉट वांट टू forgive each other. There's so much we can talk about this issue, but because the time is short, I am only speaking how the Lord is leading me. Hallelujah. So with there is a relationship being hindered between man to man, between people to people, and with God and people. Hallelujah. लोगों के बीच में ये जो संबंध है, ये रिश्ता है, वो टूट जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर कड़वाहट है और हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते. और परमेश्वर के साथ भी वो जो संबंध है वो सही तरीके से नहीं हो सकता. आप भला कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन आपका प्रार्थना का कोई भी अर्थ नहीं है अगर आपके अंदर कड़वाहट है और आपने किसी को क्षमा नहीं किया है. हालेलुया. तो आज परमेश्वर हमारे साथ बात करेगा हमको क्यों क्षमा करना है. ओके, सो क्विकली, इफ यू हैव योर बाइबल्स, विल जस्ट गो क्विकली इनटू द वर्ड ऑफ गॉड. सो राइट डाउन, इफ यू हैव अ नोटबुक एंड अ पेन, राइट डाउन व्हाई वी शुड फॉरगिव. हालेलुया. Why should we forgive? Now this whatever I'm speaking to you, जो कुछ मैं बात करती हूँ, ये आज वचन दी टू, this is my personal experience. ये मेरे पर्सनल जो मैंने अनुभव किया मेरे जिंदगी में, परमेश्वर का जो ब्लेसिंग्स मेरी जिंदगी में आज है, परमेश्वर का जो फ्लो मेरी जिंदगी में आज है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आज आपको दिखा रही हूँ. जो भी पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया है, मुझे सिखाया है मेरी जिंदगी में, वो मैं आपको आज सिखा रही हूँ. हालेलुया. This is not something that I have learned from somewhere. It is the personal experience and personal study in my life that I have realized. So I am blessed to give it to you. You are blessed to receive this from the Lord today. Hallelujah. So why should you forgive? Hallelujah. So the number one thing, please note it down. First thing you should forgive is because we all need forgiveness. Write it down. We all need forgiveness. Point number one. क्यों हमको क्षमा देना है? क्योंकि हमको okay, for us, हमको क्षमा जरूरी है. Amen. हमको परमेश्वर की क्षमा जरूरी है. We need God to forgive us. We all need forgiveness. हमको forgiveness की जरूरत है. Amen. Hallelujah. Romans chapter 3 verse 23 says, for all have sinned and fallen short of the glory of God. There is none righteous, no not one. कोई भी धार्मिक ऐसा मनुष्य नहीं है, अपने आप वो धार्मिक है. Nobody is righteous by themselves. We all have sinned. हमने सब ने पाप किया है और हमको क्षमा की जरूरत है. हालेलुया. सबको जरूरत है. तो अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, आपके साथ कुछ गलत किया है, ये भी याद रखो कि आपको भी क्षमा की जरूरत है, कि आप भी एक अपने आप धार्मिक नहीं बना, आप भी अपने आप पवित्र नहीं बना. आपको ये पवित्रता, आपको ये धार्मिकता परमेश्वर के द्वारा आई है. यीशु मसीह के द्वारा ये धार्मिकता आई है. You have received the forgiveness from the Lord. You have received the clothing of righteousness from the Lord. You have received the holiness from God. It's not your own. ये आपका नहीं है. जो कुछ आप आज एंजॉय कर रहे हैं, परमेश्वर का समाधान अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, ये आपका खुद का नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है. Even the forgiveness is a gift of God that God has given you. So that is the reason why number one point is that you should forgive, because you also need forgiveness from the Lord. Hallelujah. Now if you go to Psalms 103, you can write it down. You don't have to read it, but you can write it down. Psalms 103 verses 10 to 14, it says, he has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. Hallelujah. यहाँ पर लिखा है Psalms 103, भजन संहिता 103, in verse 10 it says,
He has not dealt with us according to our sin. जैसे हमारा पाप थे, जैसे हमने किया है, वैसे परमेश्वर ने हमको ये सजा नहीं दी है. हालेलुया. What we deserved, हमको क्या मिलने वाला था, हमको क्या सजा योग्य थे हम, what we were deserving we did not get. He didn't deal with us according to our sins. Hallelujah. Nor punished us according to our iniquity. हमको वो सजा उसने नहीं दी जो हमको मिलने वाली थी. हालेलुया. क्यों? क्या किया परमेश्वर ने? जो सजा हमको मिलने वाली थी यीशु मसीह ने उसके ऊपर उठाया और हमको छुटकारा दे दिया. हालेलुया. For as the heavens are high above the earth, so great is his mercy toward those who fear him. हालेलुया. जैसा स्वर्ग पृथ्वी से इतना दूर है, हालेलुया, सो ग्रेट, इतना परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है. प्रेज गॉड. इजंट दैट ब्यूटीफुल दैट गॉड्स मर्सी इज अपॉन आवर लाइफ? ओ ब्यूटीफुल. हालेलुया. वर्स 12 says, as far as the east is from the west, so far has he removed our transgression from us. हालेलुया. जैसा पश्चिम, okay, like the east is far away from the west, इतने दूर ईस्ट डायरेक्शन से उस डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट है, इतना दूर परमेश्वर ने हमारे पापों को हमारी जिंदगी से हटा दिया है. He has removed it out. He has put it so far away from us. Hallelujah. Thank you Lord. For he knows our frame. He remembers that we are dust. वो जानता है हमारी जो कमजोरी है, हमारी जो निर्बलता है, वो जानता है. He knows our weaknesses. He remembers. वो जानता है और वो याद करता है कि हम धूल से, हम मिट्टी से बनाए हुए हैं. मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं. ओ मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं. आमेन. मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को त्याग दिया. हालेलुया. आमेन. मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को त्याग दिया. God is so merciful to us that he took our frame of dust, our weaknesses upon himself, and he took away our weakness and he gave us our strength. Hallelujah. वो हमारा बल बन गया. Hallelujah. हमको उसने बल दे दिया. Thank you Lord. So God has forgiven us. He has removed our sins. Okay. So we all need forgiveness. That's why. Amen. So Romans chapter 5 verse 8 says, even when we were sinners, he has forgiven us. Amen. So this is point number 1. We all need forgiveness. जब हम पापी थे, परमेश्वर ने हमको अपनाया, हमको क्षमा दे दिया. Amen. इसलिए हमको दूसरों को क्षमा देना है. This is point number 1. Hallelujah. Okay. Point number 2. Why should you forgive? हमको क्षमा क्यों देना है? Because if you don't forgive others, then you will not be forgiven. Amen. हम दूसरों को क्षमा नहीं देते तो परमेश्वर हमको क्षमा नहीं देगा. हालेलुया. तो पॉइंट नंबर 1 था कि परमेश्वर की क्षमा हमको जरूरी है. सो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि हम अगर दूसरों को क्षमा नहीं देते तो परमेश्वर हमको क्षमा नहीं देगा. मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 and 15 says, praise God. Are you enjoying this? This is beautiful. And by the time we come to the end of this session, you will really love this. You'll really love this. Thank you, Jesus. And you will be free from the spirit of unforgiveness. And you will be free from bitterness in the name of Jesus. And you and your family is going to receive deliverance. Even as the word is being spoken, God is setting you free in the name of Jesus. Matthew chapter 6 verses 14 and 15 says, for if you forgive man their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive man their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. अगर आप दूसरों को क्षमा देंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा देगा. अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं देंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं देगा. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. भला आप कहेंगे, our Father in heaven, holy be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. ये प्रार्थना अगर आप कहते हैं तो उसमें क्या लिखा है आप देखो. Okay. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Hallelujah. वहां पर लिखा है कि हमारे पापों को माफ करो जैसे हम दूसरों को क्षमा देते हैं.
जैसे हम दूसरों को क्षमा देते हैं तो आप भी हमको क्षमा करो। Amen. So it is important that you forgive others so that you will be forgiven. आपको दूसरों को क्षमा करना है अगर आपको स्वर्गीय पिता से क्षमा मिलनी है। Hallelujah. Isn't that so beautiful? God is not showing any partiality for anyone, be it a pastor, be it a preacher, be it a mighty prophet or whatever. God is not showing partiality with anybody. Forgiveness is needed for everybody and everybody needs to give forgiveness for everyone. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर ऐसा किसी को फेवरेटिज्म नहीं दिखाता है। परमेश्वर कभी किसी के साथ पॉलिटिक्स नहीं खेलता है। परमेश्वर का वचन एक बार बोला वैसा ही है। परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। अगर उसने ऐसा कहा है वो ऐसा ही सत्य है, उसका वचन सत्य है। हालेलुया। हिज वर्ड इज ट्रू। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। सो इफ यू डू नॉट फॉरगिव, अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं देते तो आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। दैट्स इट। यू मे बी प्रेइंग फॉर पीपल, यू मे बी डूइंग अ बिग मिनिस्ट्री, शायद आप इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, शायद आप दान देते, ये करते वो करते, लेकिन आप अगर दूसरों को क्षमा नहीं देते, परमेश्वर आपको क्षमा नहीं देगा। हालेलुया। माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, इट्स नॉट अबाउट द गिफ्ट्स, इट्स अबाउट द फ्रूट। रिमेंबर दैट। हालेलुया। परमेश्वर हमको वरदानों से नहीं पहचानता, परमेश्वर हमको फल से पहचानता है। लोग हमको वरदानों से भी नहीं पहचानेंगे, लोग हमको फलों से पहचानेंगे। हालेलुया। They will recognize us according to our fruit. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Isn't that powerful? Praise God. So ye tha point number 2. Now point number 3, let us go to that. Okay, point number 3 is you will be free from hatred and bitterness. अगर आप क्षमा करोगे तो okay, तो आपके अंदर से वो नफरत और कड़वाहट जो है वो चली जाएगी। Okay, so we go to Ephesians chapter 4. Ephesians 4, we will just go there and we will read that word. So what happens is when we do not forgive people, we are having all kinds of bitterness. हमारे अंदर नफरत आ जाती है लोगों के ऊपर। कभी कभी देखा है आपने, जब कोर्ट में जाते हैं तो लोग एक दूसरे के ऊपर वो जो केसेस डालते हैं ना। So I've attended court. I've attended court with some people. They said, "Please come, sister, along with us." And so I've just gone and seen how people are. I don't have a case against anybody. So, but I have been with somebody in the court and I've seen how people are. मैंने देखा है वो जब कोर्ट में बैठते हैं ना, जज सामने यहाँ पर लोग होते हैं, एडवोकेट्स आते हैं ना। So the party that is against them, वो जो लोगों ने उनके ऊपर केस डाला, इसने उनके ऊपर केस डाला है। कभी कभी भाई एक दूसरे के साथ विरोध कोर्ट में झगड़ते हैं, झगड़ा होता है उनका। कभी बहन there is in-laws fighting, there sometimes there is a wife taking husband to court and sometimes there is a husband taking wife to court. It is such a shame that these things happen. It should not happen. ऐसा होना नहीं है मेरे प्रियो भाई और बहनों, ऐसा होना नहीं है। लेकिन मैंने देखा है, मेरे आंखों में देखा है कि जब लोग उस कोर्ट में आते हैं तो वो जो पार्टी होते हैं, दूसरा विरोध जो होते हैं ना, तो उनको जब देखते हैं वो इतने नफरत में देखते, इतने कड़वाहट में देखते। If you have seen people, they're never smiling, they're always they're always sad and they're always grumpy and they have that they have the they have that bitterness on their face, hatred on their face. उनका सारा चेहरा जो है ना इतना कड़वाहट में होता है, ऐसा लगता है कि बड़ा एक काला बादल उनके ऊपर आ गया है। एक दूसरे के और ऐसे देखते हैं कि एक दूसरे को मारेंगे, ऐसा देखते हैं एक दूसरे को। लेकिन एक टाइम था, एक समय था कि ये दो भाई साथ बड़े हैं। एक टाइम था कि ये दो भाई अपने माँ बाप के साथ अपने घर में अच्छी तरह खाना खाते थे, प्यार करते थे एक दूसरे से, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब कुछ इश्यूज आ गया, पैसों का, प्रॉपर्टी का कुछ भी इश्यूज आ गया, ये दो भाई एक दूसरे से विरोध चले जाते हैं। सेम थिंग विथ हस्बैंड्स एंड वाइफ, दे फर्स्ट दे फॉल इन लव एंड देन दे दे गेट मैरिड और दे आर सो गुड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ इतना प्यार करते हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद ऐसा कुछ होता है कि पति कुछ बोलता है पत्नी को, पत्नी कुछ बोलती है पति को, husband wife they say something to each other and the spirit of unforgiveness, it comes and they don't want to forgive each other. First they used to forgive and everything was okay. पहले वो एक दूसरे को माफ करते थे, छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग होता था, एक दूसरे को समझ लेते थे। लेकिन क्या हो गया अंदर, क्या हो गया
वो कब हो गया उनको ही पता नहीं है, लेकिन झगड़ा हो जाता है एक दूसरे के बीच में और एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते। तो इतना सा था तो वो बड़ा 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 हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और बाद में हम देखते हैं कि एक दूसरे के वो विरुद्ध जाते हैं और वो एक दूसरे से एक दूसरे के दूर चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस एंड दिस इज व्हाट द एनिमी वांट्स। शैतान क्या चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ हम झगड़ते रहे। ही इज वांटिंग अस टू फाइट। एक दूसरे के बीच में ये दरार लाना चाहता है शैतान। हालेलुया। बी वेरी केयरफुल। द बाइबल सेज, गॉड्स वर्ड सेज दैट आवर बैटल इज नॉट विथ फ्लेश एंड ब्लड, नॉट अगेंस्ट फ्लेश एंड ब्लड, बट अगेंस्ट प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स, अगेंस्ट द स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस। हालेलुया। हमारी जो लड़ाई है ये हम मांस लहू के साथ हम लड़ते नहीं है। हमारी जो लड़ाई है ये आत्मिकता में ये लड़ाई है और हमारे जो हथियार है ये आत्मिक हथियार होना चाहिए। हालेलुया। फिजिकल हथियार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो देयर इज सो मच ऑफ हेट्रेड एंड बिटरनेस, ये नफरत, ये कड़वाहट, ये नेगेटिव इमोशंस, एंगर, ये जो गुस्सा, ये जो जलन, ये सब हमारे अंदर आ जाता है जब अनफॉरगिवनेस आता है, जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते। ओ गॉड, वी हैव टू डील विद दिस टुडे। हालेलुया। आज ये वचन जरूरी है। प्लीज शेयर दिस वीडियो। दिस इज सो इंपॉर्टेंट दैट पीपल हियर दिस, बिकॉज गॉड वांट्स टू सेट यू फ्री। द एनिमी ऑफ योर सोल वांट टू कीप यू इन बॉन्डेज। आपका आत्मा का जो दुश्मन है वो आपको बंधन में रखना चाहता है। शैतान चाहता है कि आपके अंदर सारी तरह का नफरत, कड़वाहट पैदा हो जाए। वो चाहता है कि आप पीड़ित हो जाए, वो आप बिस्तर में पड़े जाए। वो चाहता है कि आप पाप में मर जाए। वो चाहता है कि वो आप कड़वाहट में मर जाए, ताकि वो आपके आत्मा के ऊपर कब्जा करेगा। सीधा नाम रूबा बाबा शक्कंदा राबा बाबा सीओ को। हालेलुया। वो चाहता है कि आपका आत्मा पर कब्जा करके आपको नरक में लेके जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपका छुटकारा हो। परमेश्वर चाहता है कि आप प्यार में बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे को क्षमा करें। परमेश्वर चाहता है कि आप एकता में चले। परमेश्वर कहता है जहां पर एक या दो या तीन मिलकर प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, वहां पर यीशु मसीह होता है। हालेलुया। Forgiveness is beautiful. Forgiveness is a gift of God. Forgiveness is something pure and something beautiful. It's loving. Forgiveness is the fruit of the Spirit. Hallelujah. आत्मा का ये फल है, प्यार है। Hallelujah. Praise God. Amen. So Ephesians chapter 4 verses 31 to 32, we will read this thing. Hallelujah. It says, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Hallelujah. Bravo shokondo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking be put away from you with all malice. आपके अंदर से सारी कड़वाहट, सारा नफरत, सारा गुस्सा निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। इविल स्पीकिंग, जो अपने होठों से जो बात करते हैं, जो बुराई करते हैं, दूसरों की बुराई कैसी आती है? ये कैसी आती है दूसरों की बुराई करना? हाउ इज इट कमिंग? व्हाई इज इट दैट इवन पीपल हु से दे बिलीव इन गॉड, व्हाई डू दे स्पीक बैड अगेंस्ट ईच अदर? क्यों ऐसे करते हैं? क्यों हमारे हृदय में दूसरों के लिए नफरत है, दूसरों की तरफ कड़वाहट है? वो निकाल दीजिए। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, हमारे अंदर से वो जो नफरत और जो गुस्सा है वो सब चला जाता है। हालेलुया। Evil speaking, put it away, be put away from you with all malice, with all malice। अगर हम कुछ बोलते हैं तो सच्चाई से हमको बात करना है। हाँ, परमेश्वर को अच्छे लोग नहीं, सच्चे लोग चाहिए। Listen to this very carefully। परमेश्वर को अच्छे लोग नहीं, सच्चे लोग चाहिए। बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में। आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ये अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनका हृदय आप नहीं जानते। परमेश्वर उनका हृदय जानता है। आप भी लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपका हृदय में क्या है परमेश्वर को पता है। तो परमेश्वर को अच्छे लोग नहीं, सच्चे लोग चाहिए। आपके अंदर सच्चाई पैदा होनी है, सच्चाई से बात करना है। हालेलुया। किंग डेविड said in Psalms 51, he says, you desire, Lord, you desire truth in my inward parts. हालेलुया। हे परमेश्वर, तू मेरे अंदर सच्चाई चाहता है,
सच्चाई चाहता है। यू वांट द ट्रूथ इन माय इनवर्ड पार्ट्स, हालेलुया, इन माय इनर मैन, हमारे अंदर सच्चाई होना चाहिए। तो अगर हम कुछ बात करते हैं, एक तीर से दो मत बोलो, अच्छा ही बोलो। अगर आप किसी को अच्छा बोलते हैं तो सच्चे दिल से आने दो। अगर आप किसी को बोलते हैं आप बहुत सुंदर है तो बहुत सुंदर सच्चाई से आने दो, हालेलुया। अंदर कुछ नफरत रख के बोलना नहीं है, अंदर कुछ जलन रखकर बोलना नहीं है। इट इज बेटर दैट यू डोंट से एनीथिंग देन टू से समथिंग विथ टू थिंग्स, विथ मैलिस। सो रिमूव द मैलिस फ्रॉम यू। आपके अंदर से ये जो मैलिस है वो निकाल देना। प्रेज गॉड, हालेलुया। एंड बी काइंड टू वन अनदर, एक दूसरे के लिए इतना एक दूसरे को भलाई दिखाओ, एक दूसरे को दया दिखाओ, ओके। टेंडर हार्टेड इसका मतलब है हमारा हृदय जो है वो नम्र होना चाहिए, वो सॉफ्ट होने चाहिए दूसरों के लिए, हालेलुया। डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स, आपका हृदय कठोर मत बनाना। सो जब हम दूसरों को क्षमा नहीं देते हमारा हृदय कठोर बन जाता है, वी बिकम वेरी हार्ड, एंड पीपल हु हैव गॉट हार्ड हार्ट्स दे कैन नॉट एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होगी अगर आपका हृदय कठोर है। कम ऑन, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्लीज शेयर दिस वीडियो, let people listen to this word of God, hallelujah. Thank you Lord Jesus. Forgiving one another, even as God in Christ forgive you. एक दूसरे के लिए एक दूसरे को क्षमा करो क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको क्षमा किया है। Oh my God, hallelujah. परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको क्षमा दिया है, हालेलुया। हमारे भले कामों के लिए हमको क्षमा नहीं मिली है, हमारी भलाई कुछ भी नहीं है। our good works, you know, our righteousness, हमारी धार्मिकता, हमारे अच्छे कर्म कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। हम कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। सो अगर हमको परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने क्षमा किया है, वो सिर्फ क्षमा किया है क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा किया है, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी सजा उसके ऊपर ली और हमको छुटकारा मिला है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। सो ये तीसरा पॉइंट जो था कि आपको जब आप क्षमा देते हैं दूसरों को, हमको क्यों क्षमा देना है? इसलिए देना है ताकि हमारे अंदर से सारी नफरत और कड़वाहट चली जाती है। और उसका जो स्क्रिप्चर रेफरेंस है एफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 31-32, आमेन, हालेलुया। सो द फोर्थ पॉइंट इज ब्लेसिंग्स विल ओवरफ्लो इन योर लाइफ। हमको क्यों क्षमा देना है? व्हाई शुड वी फॉरगिव? बिकॉज़ द ब्लेसिंग्स विल ओवरफ्लो इन योर लाइफ, हालेलुया। इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, द ब्लेसिंग्स आर गोइंग टू ओवरफ्लो इन योर लाइफ। इतना आशीष परमेश्वर की आएगी आपके जिंदगी में, हालेलुया। प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 verse 9, Proverbs chapter 17 verse 9, hallelujah, praise God. Isn't that beautiful how God is speaking to us today? Amen. So blessings will overflow in your life. Proverbs chapter 17 verse 9 says, he who covers a transgression seeks love, but he who repeats a matter separates friend. He who covers a transgression seeks love. Okay, जो कोई दूसरों को माफी देता है, क्षमा देता है, वो प्यार में उसकी उन्नति हो जाएगी। ओके, क्योंकि वो प्यार को ढूंढते हैं, इसलिए वो क्षमा करते हैं। और जब वो दूसरों को क्षमा करते हैं उनकी जिंदगी में प्यार आ जाएगा, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। And he who repeats a matter separates friend. Okay, separates the friends. जो आपके जिंदगी में अगर कुछ हुआ है, ऐसा कुछ बुरा काम किया है, किसी ने आपके विरुद्ध कुछ किया है, तो वो बार बार रिपीट करते 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 इतनी कड़वाहट बन जाती है आपके हृदय में। और जब आप लिसन वेरी वेरी केयरफुली, when you are telling something about somebody to someone else, इसने मेरे ऊपर ऐसा किया, आपके अंदर कड़वाहट पैदा हो जाती है। और जब आप दूसरों को बता देते हैं उनके अंदर भी कड़वाहट पैदा हो जाती है। एंड सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट हैपेंस, ओके, इनसाइड द चर्च, आउटसाइड द चर्च, बोथ द थिंग्स इट हैपेंस, ओके। सो हम कोई भी हो, कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो, उसके बारे में अगर कुछ बुरा उसने आपके ऊपर किया, आप दूसरों के बारे में ऐसा कुछ बुराई करते हैं, तो आपके अंदर कड़वाहट पैदा हो जाती है, आपका दिल कठोर बन जाता है। और जब आप दूसरों को बता देते हैं उनके अंदर भी कड़वाहट पैदा हो जाती है, और वो लोग अभी इस भाई के विरुद्ध हो जाते हैं, उनके मन में अभी पॉइजन आया है, और वो लोग जाकर दूसरों को बता देते हैं, ऐसे कलीसिया में, ऐसे संसार में, दुनिया में ऐसा फैल जाता है ये कड़वाहट, क्योंकि एक मनुष्य ने
माफी नहीं दी. If you do not forgive, that thing is going on and on and on, and it is spreading, and the blessings of the Lord will not come. So if you forgive, the blessings are going to flow. Hallelujah. Praise God. Then 3 John chapter 3rd John, okay, the third letter of John, verse 2 says, beloved, I pray that you will prosper even as your soul prospers. Hallelujah. मैं चाहता हूँ, हे प्रिय लोगों, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं चाहता हूँ कि आपकी उन्नति हो जाए जैसे आपके अंदर आत्मा की उन्नति हो जाती है. हालेलुया. As your soul prospers. So what happens? जब हम दूसरों को क्षमा देते हैं, आपके अंदर परमेश्वर का प्यार आ जाता है, आपके अंदर एक चंगाई मिल जाती है. सो आप जब अंदर ही सच्चाई में बढ़ते हैं, प्यार में बढ़ते हैं, परमेश्वर के प्योरिटी में, परमेश्वर के उपस्थिति में आप बढ़ते हैं अंदर से, ओके, तो आपका जीवन में उन्नति आ जाती है. The blessings will flow in your life when you are prospering on the inside. Hallelujah. इसलिए आपको क्षमा देनी है. Amen. Praise God. Now the point number 5, okay, there are altogether 5 points for these, that there are many points, but now this is the 5th one, and that's it. Okay, 5th one is that you may be the children of your father which is in heaven. Hallelujah. क्यों हमको क्षमा देना है? क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं. Okay, so I'm telling you, this is what I have learned personally in my life. I'm not telling you something that I've learned, और किसी का सुना मैंने, इसलिए मैं आपको बता रही. नहीं, मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये सब एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. एंड इट रियली वर्क्स, क्योंकि मेरे जीवन में जो मैं परमेश्वर की आशीष देख रही हूँ. बाय द वे, लेट मी जस्ट से अ लिटिल पॉइंट देयर. परमेश्वर की आशीष, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा दौलत ये वो, जैसा दुनिया कहते हैं आशीष, वो नहीं है. परमेश्वर की आशीष ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति, God's presence is the blessing in your life. Amen. And I am blessed that I can enjoy God's presence, because in my heart I don't want to keep anything against anybody, because God is teaching me through His word. Hallelujah. परमेश्वर आपके उसके वचन के द्वारा मुझे ये सिखाया, और परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर हम चलेंगे तो यही आशीष आपको मिलेगी. हालेलुया. Matthew chapter 5 verses 44. Okay. Oh, beautiful. This is so beautiful. Listen to this. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Come on now. It's so easy, isn't it? It's so easy, but some of you are finding it like it's not easy. Okay. Jesus says, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you. अपने दुश्मन से प्यार करो. Bless those who curse you. जो आपको श्राप देते हैं उनको आशीष दे दो. Do good to those who hate you. जो आपके ऊपर नफरत करते हैं उनको भला करो. Hallelujah. And pray for those who spitefully use you and persecute you. जो आपका फायदा उठाते हैं उनके लिए प्रार्थना करो. जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो. Hallelujah. ये है हमारा यीशु मसीह की खूबियत. This is the speciality of our Lord Jesus Christ, that He teaches us to love, and when He teaches us to love, He teaches us in such a beautiful way, in such a different way. Hallelujah. That is why Jesus Christ is Lord of our life. Hallelujah. Praise the Lord. So हमको क्यों क्षमा करना है? Point number 5 is that we can be the children of our Father who is in heaven. Verse number 45. That you may be sons of your Father in heaven, for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Okay, for if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore you shall be perfect, even just as your Father in heaven is perfect. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. अगर हम दूसरों को, हमारे दुश्मन को क्षमा करते हैं, अगर जो कोई हमको सताते हैं वो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमको श्राप देते हैं हम उनको ब्लेस करते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं. We are the children of the Father who is in heaven. Hallelujah. Because that's the way our Father is. And I want to be a child of the Father always. मैं ये चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर की बेटी हमेशा रहूं. मैं कभी भी शैतान का ना सुनूं. मैं ये चाहती हूँ. I want that to happen to me every time, because I want to be named as the daughter of Almighty God. I want that name on me. It's a beautiful name for me.
and it's a beautiful name for you. क्या आप नहीं चाहते कि लोग आपको देखकर बोले कि ये डेफिनेटली परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का एक बेटा है? क्या आप नहीं चाहते ये लोग आपको देखकर ऐसा बोले? तो कैसा हो जाएगा? एक कैसा हो जाएगा? जब हम दूसरों को क्षमा देते हैं तो ऐसा होता है। जब कोई हमको सताता है, हम जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जब कोई भी हमारा फायदा उठाता है, जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाएंगे। हालेलुया। People are going to call us the children of the heavenly Father. Amen. Hallelujah. Praise God. Now, you may say that, this is so unfair. ये सब कुछ मैंने आपको बोला है, ये सब कुछ सुनने के बाद शायद आप बोलेंगे, सिस्टर आपको पता नहीं है मेरे जिंदगी में क्या हुआ है, आपको पता नहीं है इस औरत ने मेरे साथ ऐसा किया, इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया, ये लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे कंपनी ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी नौकरी चली गई, अनफेयर, दे वर नॉट गुड टू मी, मैंने इतना काम किया लेकिन मेरे ऊपर लात मारा, अभी मेरे पास ऐसा है, उनकी वजह से मेरा जिंदगी ऐसी हो गई है। आप शायद सोच रहे हैं कि जो आपके साथ हुआ है बहुत ही अनफेयर हो गया है, इट वॉज नॉट करेक्ट दैट हैपन टू यू। मैं मानती हूँ और मैं अभी किसी और की एग्जाम्पल नहीं देती, सिर्फ मैं यीशु मसीह की एग्जाम्पल आपको देती हूँ। यीशु मसीह ने क्या किया? 1 Peter chapter 2 verse 23. Why I'm giving you scriptures? Because you need to see the word, what God's word says about it. Hallelujah. आपको देखना है ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है, and you may need to listen to this video again. It's a very beautiful day that God has made. Amen. And you need to share this video. You need to listen to this video again and again. Praise God. 1 Peter chapter 2 verse 23, it says 22 and 23, who committed no sin, nor what was deceit found in his mouth. उसने कुछ पाप नहीं किया। किसने? यीशु मसीह ने। उसने अपने मुंह से कुछ कभी ऐसा गलत नहीं कहा, उसने पाप नहीं किया, उसने कुछ मुंह से गलत नहीं कहा। ओके? आप सोचते हैं कि आपके विरुद्ध जो किसी ने कुछ किया है वो बहुत ही अनफेयर था, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही क्षमा देने को। You may be thinking it's very unfair, but remember that we are all sinners and we all need forgiveness. But Jesus did not do any sin. He committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. Verse 23, who when he was reviled, when he was insulted, he did not insult in return, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but committed himself to him who judges righteously. Listen to the scripture. Okay, when he was insulted, he did not insult in return. यीशु मसीह का रेस्पॉन्स क्या था? उसके विरोधियों के ऊपर उसका रेस्पॉन्स क्या था? जैसा यीशु वैसा हमको बनना है। Jesus says, be holy as I am holy. होली का मतलब क्या है? सेट अपार्ट, अलग। जैसे दुनिया करता है हमको करना नहीं है। यीशु मसीह अलग था, सेपरेट था, होली था, प्योर था। और यीशु मसीह कहता है कि जैसा वो पवित्र है हम भी उसके जैसे बने। तो उसने कुछ पाप नहीं किया था, उसके मुंह से कुछ गलत नहीं आया था, लेकिन बल्कि उसको जब लोगों ने बुरा किया तब उसने क्या किया? जब उसको इंसल्ट किया तो वापस उन्होंने इंसल्ट नहीं किया। ओके? When he suffered, he did not threaten. उसके ऊपर इतना बुराई की, यीशु मसीह ने इतना सहा, लेकिन जब वो सहता था, when he was suffering, he did not turn back and say, मैं आपको दिखाता हूं, आप क्या समझता है? ऐसा कुछ थ्रेटन नहीं किया, धमकी नहीं दिया किसी को, चुपचाप वो सहा। ओके? But committed himself to him who judges righteously. उसने अपने आप को पिता के हाथों में समर्पण कर दिया, क्योंकि पिता न्याय करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
न्याय का दिन जल्दी आने वाला है। हमको किसी का न्याय करना नहीं है। वी आर नॉट टू जज एनीबॉडी। हमको किसी के ऊपर रिवेंज नहीं लेना है। रिवेंज, बदला, हमको किसी के ऊपर बदला नहीं लेना है। परमेश्वर का वचन कहता है, वेंजेंस बिलोंग्स टू मी, आई विल रिपे सेज द लॉर्ड। बदला मैं लूंगा। परमेश्वर कहता है बदला मैं लूंगा। आपको कुछ करना नहीं है, आप बदला नहीं लेना। आप अपने हाथों में कुछ लॉ नहीं लेना ऐसा कि उनके ऊपर कुछ बदला। अगर आप बदला लेंगे तो परमेश्वर आपको भी क्षमा नहीं देगा। राइट? गॉड इज नॉट गोना फॉरगिव यू इफ यू वांट टू टेक रिवेंज ऑन पीपल। दैट इज अनफॉरगिवनेस। आपको बदला नहीं लेना है। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्याय करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के हाथों में समर्पण कर दिया। जब उसको इंसल्ट किया तो उसने वापस इंसल्ट नहीं किया। हालेलुया। In fact, the Bible says in Luke chapter 23 verse 24, look at how beautiful our God is. Look at how beautiful he is. Our God, when he was on the cross, Jesus was on the cross, they were nailing him to the cross. उसको क्रूस पर चढ़ाया लोगों ने। The ones who were crucifying him, Jesus called out to the Father. Jesus forgave them, and he said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. पिता, क्षमा करो इनको कि वे लोग नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उनको क्षमा ही कर दिया, लेकिन उनके लिए विनती भी की, उनके लिए प्रार्थना भी किया। अपने सताने वालों के लिए उन्होंने प्रार्थना भी किया, विनती भी किया, पिता उनको क्षमा करो क्योंकि वो लोग नहीं जानते वो क्या करते हैं। क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? उनको क्षमा करो क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या करते हैं, क्योंकि वो सच्चाई में नहीं जानते थे। उन लोगों को पता नहीं था कि यीशु मसीह को क्रूस पर वो चढ़ाते थे, लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु के बाद हमको जीवन मिल जाता है। उनको पता नहीं था। जो उनको आज्ञा दी थी वो आज्ञा वो मानकर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। और यीशु मसीह इतना दयालु और इतना प्यारा, पहले ही उन्होंने उनके लिए विनती किया। Isn't our God so beautiful and so loving? He is our forgiving God. Hallelujah. He is our forgiving God. And today, this example of the Lord is before you. And Jesus wants you to forgive your enemies. He wants you to forgive the ones who has hurt you. He wants you to forgive the ones who have wronged you. Praise God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. So beautiful. He is so beautiful. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now you will say, it's very difficult for me. बहुत लोगों ने ऐसा मुझे जवाब दिया है जब मैंने उनको काउंसलिंग किया और बोला कि क्षमा करो उनको, क्षमा करो उस आदमी को, क्षमा करो उस औरत को, क्षमा करो। उन लोगों ने मुझे वापस क्या जवाब दे दिया? बहुत डिफिकल्ट है। इट्स वेरी वेरी हार्ड, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम सेइंग टू यू टुडे, इट्स नॉट impossible. Jesus says, all things are possible to them that believe. सब कुछ संभव है अगर आप विश्वास करते हैं तो। फिलिपियन का 4:13 कहता है, I can do all things through Christ who strengthens me. मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा। ये आपकी खुद की शक्ति नहीं है, ये परमेश्वर की शक्ति और ताकत से आप सब कुछ कर सकते हैं। Today, let the Lord touch your heart. Let the Lord set you free from the spirit of unforgiveness. Amen. It's important to forgive. We all need forgiveness. हमको जरूरी है, क्षमा हमको जरूरी है। God wants to bless you. God wants you to be free from hatred and bitterness. हमारे अंदर से सब कुछ गलत जो है वो चला जाएगा। And I tell you something beautiful now. Beautiful. When you are free from the spirit of unforgiveness, you will experience the presence of God like never before.
जब हम दूसरों को क्षमा देते हैं, हमारा हृदय इतना फ्री हो जाता है, हमारा प्रार्थना का जीवन इतना खूबसूरत बन जाता है। परमेश्वर हम पर स्माइल करता है, वो हमारी जिंदगी में हमको मिलने को आता है। God visits us when we forgive others. Come on, put your hand on your heart. Put your hand on your heart. God is going to do a work in you. In the name of Jesus, I rebuke the spirit of unforgiveness. In the name of Jesus, right now, I set you free. In the name of Jesus, be free from unforgiveness. Be free from hatred and bitterness. आज छुटकारा पाइए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। What's the most beautiful thing in the world? His presence. What's the most beautiful place in the world? The secret place. Treasure that. Treasure that. वो गुप्त स्थान, वो पवित्र स्थान आपको कितना प्यारा लगेगा जब आपके हृदय से सब गुस्सा आप निकाल देते हैं। चाहे किसी ने भी आपके ऊपर इतनी बुराई की, आपको मारा पीटा, आपको गलत बोला, आपके विरुद्ध कुछ ब्लैक मैजिक किया, आपको आपका चुराया, कुछ चोरी किया आपसे, कुछ भी हो, अगर यीशु मसीह कहता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। We can do all things through Christ. Forgive people today. Take that person's name right now. उस मनुष्य का, उस व्यक्ति का नाम ले लो और क्षमा दे दो उसको। शायद आपके जीवन में 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आज क्षमा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ आपके हृदय में रहना चाहता है। ये अंदर का जगह शुद्ध हो जाने दो। हालेलुया। वो जानता है आपकी कमजोरी को, इसलिए वो आ गया। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। What's the use of keeping all that hatred and bitterness when life is so short? Amen. Amen. यह मिट्टी एक दिन मिट्टी को मिल जाएगी। क्या फायदा होगा हमारे हृदय में नफरत और कड़वाहट रखकर? मिट्टी से बनाया गया हूँ, में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदल ले, तेरी महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदल ले, तेरी महिमा को त्याग दिया। Sing it with me. सपना है, इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। मेरी अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरी अंतिम सांस जाने प्रकाशित करूं। होसन्ना, होसन्ना, यहोदिया के राजा को। होसन्ना, 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 आने वाले राजा को। होसन्ना। Thank you, Lord, for this beautiful time and this beautiful teaching. Thank you, Lord, for your beautiful presence in our midst. तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज सारे तेरे बच्चों ने तेरा वचन सुना है। तेरे वचन के द्वारा बहुत लोगों को चंगाई मिली है, छुटकारा मिला है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और हर एक को हम ब्लेस करते हैं। I bless each and every person, Lord, those who are watching, and I bless the admins of Isaac Music World in the wonderful work they are doing, Lord. You bless them, God. Hallelujah. We bless all our enemies, oh God. We bless those who hate us. जो कोई हमारे ऊपर विरोध में है, हम पर नफरत करते हैं, सबको हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज ये सारे लोगों को, आज सारे बच्चों को, जो कोई ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग्स हम रिलीज कर देते हैं। छुटकारा पाइए आपके घर में, छुटकारा पाइए आपके परिवार में, यीशु मसीह के नाम में। जो कुछ नहीं है, जो आपने मांगा है परमेश्वर से, वो सब कुछ आपको मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। If you prosper inside you, you will prosper outside. Beloved, I pray that you will prosper even as your soul prospers. Let there be love, abundance of love, joy, peace. Let there be abundance of God's blessings overflowing in your life. I bless each and every one of you in Jesus' name. Love you all. Jesus loves you.